children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, food, our basic need. Let's learn about food groups, balanced diet, digestion of food, good eating habits, cooking food, and preservation of food. All living beings need food to live. Our body makes us feel hungry and tells us that it needs food. Food gives us energy for doing daily activities. Food also helps us to grow. देखिए, हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी जो है, हमें जब हम हंग्री फील करते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत है, और इस फूड से हमें एनर्जी मिलती है डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए. इसके अलावा फूड जो है हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है. Food groups, what food contains? The complete food contains different kind of substances. These substances are called nutrients. These nutrients are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. Besides the nutrient, water and roughage are other substances that are important for the body. तो देखिए, कंप्लीट फूड में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं. तो इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. देखिए, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा वाटर एंड रफेज, ये भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. Nutrients are the following functions. They give us energy to do work. They are required for the growth of our body. They help to repair our body and protect us from diseases. अब न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए. इसके अलावा हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इनकी ज़रूरत होती है. इसके अलावा अब ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं. Proteins. Proteins are nutrients that help to build the body and make new cells. They are called bodybuilding food. They also help in the repair of worn out tissues. Proteins are especially important for growing children. Meat, egg, fish, milk and milk products, pulses, beans and soya bean are the food items which are rich in proteins. अब देखिए, प्रोटीन्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, नए सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, और इनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड. इसके अलावा ये वर्न आउट टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं. एंड प्रोटीन स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी जिस एज पे आप हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ये सारे ही सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन्स के. Carbohydrates. We get heat and energy from carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy in our food. Sugar and starch are rich in carbohydrates. Cereals, bread, potato, banana and sweets are sources of carbohydrates. These food items are called energy giving foods. देखिए, हमें एनर्जी एंड हीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है. एंड कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे फूड में. शुगर एंड स्टार्च ये आपके कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, और इन्हें क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है. Fats also give us energy. We get more energy from fats and carbohydrates. Fats help to keep the body warm. Extra fat is stored in our body for future use. Therefore, fats are the energy bank of our body. Oil, butter, ghee, meat and nuts are rich in fats. फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड इनफैक्ट ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट हमारी बॉडी को वार्म रखने पे हेल्प करते हैं, एंड जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, और इसीलिए इन्हें एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है. Vitamins and minerals. Vitamins help our body to fight against diseases and protect us from falling sick. जो विटामिन्स है हमें वो डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा बीमार पड़ने से भी हमें बचाते हैं. Minerals help in the formation of bones, teeth and blood. The food items rich in vitamins and minerals are called protective foods. A, B, C, D, E and K are the vitamins found in our diet. Fruits, vegetables, milk, eggs and sprouted grams are rich in vitamins. Calcium, potassium, iodine and iron are some minerals we consume. Calcium makes our teeth and bones strong. Milk, curd, almonds, apples, carrots and green leafy vegetables such as spinach are rich in मिनरल्स. देखिए, हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, टीथ एंड ब्लड में हेल्प करते हैं, राइट. इन आपको जो फूड आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स से रिच होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड. अब आपके देखिए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउटेड ग्राम्स हैं, ये आपके विटामिन रिच होते हैं. इसके अलावा आपके देखिए जो मिनरल्स आप कंज्यूम करते हैं इनमें कैल्शियम जो है आपके टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, और आपको मिल सकता है कहाँ से, ये सारे सोर्सेज हैं आपके जहाँ से आपको minerals मिल सकते हैं. Roughage. Roughage is the fiber present in the food items that we get from plants. Most of the fruits, vegetables and seeds contain fibers. We cannot digest roughage. It helps to remove undigested food from our body. Salad gives us a lot of roughage.
रफेज जो है आपका खाने में जो आपके फाइबर प्रेजेंट होता है फूड आइटम्स में, वो आपका रफेज होता है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो ज़्यादातर आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल या सीड्स में आपके फाइबर होता है। हम रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ये हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करता है। सैलड जो है, सैलड से आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है रफेज का। Water is essential for the body to function properly. Water constitutes about 70% of human body tissues. 3/4 of our body weight is water. It regulates the temperature of our body. It helps in digesting the food. It removes waste from the body. और वाटर देखिए, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। Do you know lack of iron in our body causes a disease called goiter? अगर आयरन की कमी आपकी बॉडी में हो गई है तो उससे एक डिसीज जिसका नाम है गोइटर, ये होता है। Balanced diet. The food we eat daily is called our diet. A diet contains proper amount of all the nutrients, roughage and water required for good health is called a balanced diet. The balanced diet food keeps us fit, healthy and protect us from diseases. देखिए, जो खाना हम डेली खाते हैं उसे हम कहते हैं डाइट। एक डाइट आपकी जिसमें आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों, सारे ही न्यूट्रिएंट्स मीन्स आपकी अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है हमें फिट रखती है, हेल्दी रखती है और हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है। एडवाइस, वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप चाहते हैं कि हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिले तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाना बहुत ज़रूरी है। Digestion of food. The food we eat does not give energy directly to our body. It is broken down into a simpler form. The process of breaking down of food into a simpler form is called digestion. There are various organs that work together and help in digestion. These organs together form the digestive system. अब देखिए, खाना जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली एनर्जी तो नहीं देता है, सबसे पहले वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ. When we eat food, we put it into our mouth. Teeth chew and grind the food. As the food is chewed, it is mixed with saliva produced by the salivary glands. Saliva changes the food into sugar and also makes the food soft. सबसे पहले हम खाना अपने माउथ में लेके जाते हैं, ठीक है। टीथ जो है खाने को च्यू करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। देन सलाइवा के साथ फूड मिक्स होके सॉफ्ट हो जाता है। सलाइवा क्या करता है, फूड को आपका शुगर में चेंज कर देता है एंड जिसकी वजह से फूड आपका सॉफ्ट हो जाता है। फूड पाइप. फूड पासेज थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टमक. अच्छा, अब देखिए, जो फूड पाइप से अब खाना माउथ से फूड पाइप में जाएगा, देन फूड पाइप से ये आपका होता हुआ जाएगा स्टमक में। Stomach. Our stomach is a hollow muscular bag. The food is churned here. The digested juices in the stomach break down the proteins present in the food into a simpler and soluble form. अब आपका जो स्टमक है एक मस्कुलर बैग की तरह, हॉलो मस्कुलर बैग है। यहाँ पे फूड आपका चोन्ड होता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस जो स्टमक सिक्रीट करता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं जो फूड में आपके प्रेजेंट होते हैं सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में। Small intestine. From the stomach, the food is pushed into a long coiled tube called the small intestine. अच्छा, अब देखिए, स्टमक के बाद आपका जो खाना है वो कहाँ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, राइट। ये आपकी लंबी सी कॉइल्ड ट्यूब होती है। Here the food mixes with the juice produced by the walls of the small intestine. The liver and the pancreas also pour their juices into the small intestine. These juices help to completely digest the food. The digested food is absorbed by blood vessels in the walls of the small intestine. अच्छा, इसके बाद क्या आता है, आपकी जो लीवर एंड पेनक्रियाज हैं वो भी इसमें डाइजेस्टिव जूसेस अपने पोर करते हैं, राइट। एंड आपके इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी जूसेस को सिक्रीट करती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो जूसेस होते हैं फिर ये खाने के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है बाय ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। लीवर. अच्छा, लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल्स दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Large intestine. The undigested food passes into the large intestine. The blood vessels in the walls of the large intestine absorb the extra water. The semi-solid waste is passed out through the anus when we go to the toilet. अच्छा, देखिए, आपका डाइजेशन हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसकी वॉल्स क्या करती है, वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। फिर जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है व्हेन वी गो टू द टॉयलेट।
Good eating habits. Eat your meals at a fixed time. Eat a balanced diet and drink plenty of water. Wash hands before eating. Chew food properly before swallowing it. आपको हमेशा अपना मील फिक्स टाइम पे लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए एंड पानी भी आपको बहुत सारा पीना चाहिए. खाने से पहले यू शुड वॉश योर हैंड्स एंड अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए सॉलो करने से पहले. Cooking food. Some vegetables such as carrots, cucumber, lettuce and fruits can be eaten raw. They must be properly washed before eating to free them from dust and germs. Other foods such as cereals and vegetables are cooked before eating. Cooking makes them soft, tasty and easy to chew and digest. Remember the main points while cooking. Do not overcook the food. Use the water in which pulses are soaked. It contains vitamins. Wash the vegetables before chopping them. If you wash chopped vegetables, a lot of nutrients are lost. देखिए कुछ ऐसे vegetables होते हैं आपकी, जैसे कि देखिए ये सारे, इनको हम कच्चा खाते हैं, राइट तो इनको खाने से पहले आपको अच्छे से वॉश करना होता है ताकि ये डस्ट फ्री और जर्म्स फ्री हो जाए. और कुछ आपके फूड है जैसे कि कुछ सीरियल्स या वेजिटेबल्स है, उन्हें हमें पका के खाना होता है, क्योंकि कुकिंग से क्या हो जाता है आपका खाना सॉफ्ट, टेस्टी एंड सबसे अच्छी बात की वो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है. तो कुकिंग करते टाइम कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले फूड को ओवर कुक नहीं करना है. जिस पानी में आपने पल्सेस को भिगोया है, सोक किया है, उसमें वाइटामिन होते हैं तो उसे यूज़ करना है. एंड वेजिटेबल्स को चॉप करने से पहले वॉश करना है, क्योंकि चॉप करने के बाद अगर आप वॉश करेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. When we keep food for a few hours, germs start growing on it. The food starts rotting and is then not fit to be eaten. So we must prevent food from getting spoiled. We can preserve food in many ways. The preserved food remains fresh for longer and is available through the year. The method that is the best will depend on the type of food as well as how long the food needs to be preserved for. There are different ways to preserve food for future consumption. देखिए अगर हम कुछ घंटों के लिए खाने को रख देंगे तो जर्म्स उसमें ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, फिर खाना आपका रॉट हो जाएगा और फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा. तो इसीलिए हमको खाने को स्पॉइल होने नहीं देना है, तो हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं. तो बहुत सारे मेथड्स हैं आपके प्रिजर्वेशन के, जिससे कि आपका खाना जो है फ्रेश रहता है और लंबे समय तक वो टिका रहता है. Refrigeration. We can keep vegetables, fruits and cooked food fresh for a few days in a refrigerator without going bad. The temperature inside a refrigerator is very low. Germs cannot grow well inside it. आपने देखा होगा कि हम अपने फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स या कोई भी कुक्ड फूड है उसे हम फ्रिज में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वहाँ का कम होता है तो जर्म्स वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते. Drying. This is the oldest method for preserving food. By drying, the water content in the food is removed. Grapes are dried to raisins. Chilies are also dried to preserve them. The dried food is sealed in packets. ये सबसे पुराना मेथड है ड्राइंग का. इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को ड्राई करते हैं जो वाटर कंटेंट होता है फूड में वो रिमूव हो जाता है. जैसे ग्रेप्स को ड्राई किया जाता है तो उससे बनते हैं रेजिन्स. चिलीज़ को भी ड्राई किया जाता है और उसके बाद प्रिजर्व किया जाता है. Canning or bottling. Canning is a process in which food is heated in a can to kill the germs. The food is sealed in airtight cans to prevent them from getting affected by moisture. Bottling is also the same process. When food is heated in a bottle, it is called bottling. कैनिंग आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपके फूड को हीट किया जाता है कैन में, जिससे जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं. फूड को फिर सील किया जाता है एयरटाइट कैन्स में, जिससे कि मॉइस्चर उसको अफेक्ट ना कर सके. बॉटलिंग का भी जो प्रोसेस है वो सेम होता है. Defreezing. Keeping food in the freezer to preserve it for a longer time is called defreezing. For example, keeping meat and fish in the freezer. Pickling mango, chili, lemon, bamboo shoots, etc. Pickle by mixing it with salt and water. अच्छा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना थोड़े और लंबे समय तक टिका रहे, प्रिजर्व रहे, तो उसे हम डालते हैं फ्रीज़र में. तो इसे कहते हैं डीप फ्रीज़र. जैसे कि मीट या फिश को हम रख देते हैं फ्रीज़र में. इसके अलावा जैसे अचार बना दिया जाता है, मैंगो, चिली, लेमन है या फिर आपके बैम्बू शूट्स हैं, इनको मिक्स किया जाता है सॉल्ट एंड ऑयल के साथ. एडवाइस. डू नॉट ईट जंक फूड. जंक फूड इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब food that is high in calories from sugar, fat and possibly also sodium. So avoid junk food. आप लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए. जंक का मतलब क्या है? वो फूड जिसमें आपका हाई कैलोरीज होती है, मतलब शुगर होता है, हाई शुगर, फैट एंड उसमें सोडियम का अमाउंट भी हाई होता है. तो इसीलिए आपको जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. लेट्स रिमेंबर, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are nutrients present in food. A balanced diet contains all the nutrients in the right amount. We need to wash and cook food items properly.
देखिए फूड में आपके बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में पाए जाते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें आपके सारे ही न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट या फिर अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं। किसी भी फूड आइटम को खाने से पहले आपको उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली कुक करना चाहिए। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।